You had COVID abhi recently. Yes. You couldn't take part in the India Pavilion in Cannes. आपने इसके बारे में भी कहा that it was a loss for you. Yeah, I couldn't go. But that was the first time in my life I got an invitation to go to Cannes. मुझे. And I don't believe that. Really? नहीं, मुझे किसी ने नहीं बुलाया. आपको नहीं बुलाया? कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े फिल्म एक्टर हैं. नहीं हो सकता है, कोई ऐसी फिल्में मैंने नहीं की हो जो कांस तक जा सके. अच्छा. तो नहीं बुलाया, इसमें शर्म की क्या बात है. तो do you feel that Indian film industry has like really arrived in the global scene जो अब Indian films को लेकर special? I am sure, and all thanks to our Prime Minister who has taken us so big and so in such a huge way internationally. So and things are changing for our country. Well, that's it. Akshay ji, while researching for this interview, I saw a number of your video interviews which you have done. आप एक खासियत है आपके interviews में that it feels like you straight from the heart that you speak. Very दिल से बोलने वाले आदमी हैं. How come that you in this industry जहाँ पे इतना gloss, glamour सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी you are very ज़मीन से जुड़े हुए? देखिए, मेरे को बहुत पहले मतलब किसी ने एक बात सिखाई थी कि जब भी इंटरव्यू करो या किसी से बात करो, जस्ट बी योरसेल्फ. जो नहीं आती, जिस बात के बारे में नहीं पता, जो कभी कभी कोई इंग्लिश में ज़्यादा बात करने की मुझे कहता है, तो ज़्यादा इंग्लिश अच्छी नहीं आती. So I just be myself. The idea behind this is just be yourself, and that's it. तो हो सकता है because just being yourself comes from your heart, and that comes out. That is all it is. Is that what you did जब आपने प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया? बिल्कुल दिल से आपने सवाल पूछे? हाँ, दिल से ही पूछा. मतलब मैं अपने जो मुझे जानना मैं जो एज अ कॉमन मैन आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे प्रधानमंत्री घड़ी उल्टी ऐसे क्यों पहनते हैं. आम वाले जो क्वेश्चन था, जो भी है, मैं आई जस्ट वांटेड टू नो इट, बिकॉज फिर मेरे में और बाकियों में क्या फ़र्क रह जाता. मैं थोड़ी जाके पॉलिसीज़ के बारे में, वो मेरा काम थोड़ी है कि मैं पॉलिसीज़ के बारे में पूछूं कि आपने ये क्या किया, वो क्या किया. इट ऑल लुक्स फेक if I would do that. I just wanted to ask him very simple, straight questions, and that's it. And थोड़ा सा बातें की, एक दो चुटकुले सुनाए मैंने, बस, और क्या, खत्म हो गई. Were you surprised at all that you were given this opportunity? क्योंकि it's not common कि एक पूरा sit down interview एक film actor जो है प्रधानमंत्री से पूछे. I was taken aback, and I didn't know that I would get a chance to do that, and I was honored कि जाके मैं उनके साथ बैठूं और उनके साथ बातचीत कर सकूं. I was a little bit nervous, but then after I started talking to him, he made me not feel nervous at all, and उसके बाद everything was just flowing. I was just enjoying myself. Do you think that it's also because you could vibe with him or whatever, because he's also somebody who is an outsider? आप भी एक किस्म से एक फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर ही थे ना. आपका कोई फिल्म इंडस्ट्री से कोई रिश्ता नाता नहीं था. You just came from nowhere, and he's also the same way. I think the best part about our Prime Minister is he knows how to mold himself. He's if he's talking to me, he'll mold himself towards me. If he's talking to him, he'll mold himself. If he's talking to children, he will be according to their age and this, how it should. So I think the ability to mold himself is a great thing in him. Is that something that you also did in the film industry? You've kept on changing the kind of roles that you have done. You didn't typecast yourself कि मैं action hero हूँ. Well, मतलब जब मैं आया था इंडस्ट्री में, तो मैं एक एक्शन हीरो के आया था. मुझे मतलब सिवाय एक्शन के कोई कुछ और रोल देता भी नहीं था, और इसलिए भी नहीं देता था क्योंकि मैं एक्शन के सिवा ज़्यादा जानता भी नहीं था. तो मैं एक्शन ही करता था. मैं और फिल्में करना चाहता था, लेकिन मुझे कोई देता नहीं था. फिर थोड़ा आगे जाके मुझे कभी प्रियदर्शन साहब ने एक कॉमेडी फिल्म दी, हेरा फेरी. फिर उसके बाद धर्मेश दर्शन, सुनील दर्शन, फिर मैंने जानवर की.
फिर एक वक्त आया जब मेरे पास थोड़े पैसे हो गए और मुझे ना क्या किया मैंने अपनी एक कंपनी शुरू की और मैंने उसमें पिक्चर प्रोड्यूस करना शुरू की। फिर मैंने ऐसी टॉयलेट एक प्रेम कथा, एयरलिफ्ट, केसरी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, ऐसे मैंने करीबन 32 फिल्में बनाई हुई हैं। सोशली रेलेवेंट, सोशली रेलेवेंट जो फिल्में एक्चुअली में मैं करना चाहता था, ओके, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। तो वो करने में 20 साल लग गए आपको इंडस्ट्री में। तो पैसे कमाने में भी तो वक्त लगता है, ऐसे थोड़ी आ जाता है पैसा जाके। मैंने जब काम शुरू किया था अपनी ज़िंदगी में तो मुझे पहली फिल्म के 51,000 मिले थे, पूरी फिल्म के। करीबन 10 साल तक मेरी रेम्यूनेशन 8 या 9 लाख से ऊपर नहीं गई थी पर फिल्म के। फिर आगे जाके बढ़ती गई। जब पहली बार 1 करोड़ रुपए की एक फिल्म साइन की थी, ओहो हो, मतलब आत्मा प्रसन्न हो गई थी। Akshay ji, were you overwhelmed when this offer came to you? Because what Dr. Saab is saying is that इतने सारे facets हैं to Prithviraj Chauhan. Did you feel that आपने कभी रोल नहीं किया of any king as such? So did you feel कि आप were you overwhelmed कि मुझे क्यों मिला ये रोल और मैं कर पाऊंगा कि नहीं? हाँ जी, ज़रूर, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं सोचा कि, क्योंकि मैंने भी, जैसे आप पूछ रहे थे, मैंने भी अपनी हिस्ट्री बुक में जब मैं पढ़ता था तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो तस्वीर बनाई हुई थी, ही वॉज अ लिटिल स्टाउट पर्सन, एंड मैं यही सोचता था कि मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मतलब मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था, मैं आई हैव एन एथलेटिक बॉडी एंड दैट वाज अ स्टाउट बॉडी, दैट वाज सो। तभी इन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बेटा करीबन 18 से 20 वॉर्स लड़ चुके हैं, एंड मेरे हिसाब से ही हैड एन एथलेटिक बॉडी। और तो देन ही शोड मी द रीजंस, जैसे अभी बता रहे थे, और भी इन्होंने मुझसे करीबन 2-3 घंटे बैठ के बात की है, एंड आई वांटेड टू नो मोर अबाउट इट। मैं तो इतनी सारी कहानियाँ इनसे सुन चुका हूँ सम्राट पृथ्वीराज चौहान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं हिस्ट्री की किताब में। बाकी सारी चीज़ों के ऊपर लिखी हुई है, जो इन्वेडर्स के ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हमारे खुद के जो कल्चर है, हमारे जो खुद के महाराजा हैं, राजा हैं, उनके बारे में 2-2, 3-3 अक्षर लाइनें लिखी हुई हैं। सो व्हेन ही केप्ट ऑन टेलिंग मी, आई वाज टेकन अबैक कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी चीज़ें हैं और हमें पता नहीं। और मैं फिर, लेकिन मैंने इनसे कहा भी, ये सब सही है ना डॉक्टर साहब, ये सब सही है ना, ये काल्पनिक तो नहीं है ना, यू आर नॉट मेकिंग इट अप ना। तब इन्होंने मुझे पृथ्वीराज रासो बताया, सब कुछ बताया, ये क्या, एंड आई वॉज कन्विंस्ड। एंड वैसे भी ये अगर बना रहे हैं तो योर 90-95% जॉब इज डन। एंड मुझे तो कितने लोगों ने कहा है कि आप होमवर्क काफ़ी किया होगा। मैं बोला होमवर्क क्यों करूं, 18 साल से ये होमवर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर दिया। So you're completely a director's baby, a writer's baby, है ना? Some movies you have to अपने आप को अर्पित करना पड़ता है। I have to give up myself and completely go with what his belief is. What was the biggest challenge in essaying this role? Oh, there was no challenge. अच्छा. There was no challenge. I could easily say there was a very lot of challenge. I really worked hard and all, but there was no challenge because all my challenges he took it on his chest. And he was taking it and he was driving the whole thing. क्योंकि a period film बनाने में सालों साल लग जाते हैं. I'm not talking about the research. Research अलग बात होती है, but even putting it into action, sets बनाना, उसे फिर अंजाम देना, 42 दिन में इन्होंने मेरे साथ काम कैसे, ये टॉम क्रूज वाली बात हो गई फिर? हाँ बिल्कुल। वो मुझे कई बार लोगों ने बताया कि विदेशों में फिल्मों को इतना समय नहीं लगता है शूटिंग करने में, लेकिन उसका कारण प्रेपरेशन। सिमिलरली यशराज फिल्म जैसा प्रोडक्शन हाउस विच इज थॉरो प्रोफेशनल, एंड द टीम दे हैड गिवन मी, दे वर ऑल ब्रिलियंट, माय ऑल असिस्टेंट्स वर रेडी टू बी द डायरेक्टर्स। So they were बम्बई में ही 36 सेट लगाए, 36 सेट, there was not a single day's delay. फिर हर एक इंसान के जो मेरे कोर्टयार्ड में थे, उनकी पगड़ियाँ 500 किस्म की पगड़ियाँ हैं, 523 एक पगड़ी आप देख सकते हो। विद द पगड़ी, बिकॉज ऑफ द पगड़ी यू कैन कम टू नो कि वो कहाँ खड़े होने चाहिए। अब उनके औहदे के हिसाब से पगड़ियाँ हैं।
Akshay ji, you were seen as this icon in Mata Vaishno Devi temple. You used to go there very often. And you used to go to many temples also. आप सब जानते हैं कि you were one of those who was visiting temples much before it became fashionable, I should say, for people to go just before a film release. You used to go even otherwise. फिर आपने कहा that you saw a lot of waste happening in temples. चढ़ावा चढ़ाते टाइम. मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सोमनाथ मंदिर भी गया जी. मैंने जो दूध उधर चढ़ाना था मैंने उधर नहीं, मैं आई हैव गिवन इट टू द ट्रस्ट एंड टोल्ड देम टू गिव इट टू द नीडी आउटसाइड, बिकॉज दैट किसी के काम आएगा. चाहे वो तेल हो, चाहे वो दूध हो, वो किसी के घर में जाएगा, किसी के पेट में जाएगा. वहां इतने सारे लोग थे जो हु नीड्स दैट. तो हमारे जो प्रैक्टिसेस एंड whatever I have said, I have still see, I'm not saying कि आप भी करिए. ठीक. मैं जो कर रहा हूं, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया. मैं कल गया हुआ था, वहां जाके जितना भी दूध चढ़ाना था मैंने दे दिया. मैंने बोला आप किसी के घर पे दे देना, कुछ लोगों को दे देना, तेल जो भी चढ़ाना था दे देना. Akshay ji, I'm going to ask you again about issues that you have raised in your films. Besides this film, you've come out with several films which are socially relevant, whether it was about sanitary napkins, whether it was about toilets being made. What is it that motivated you to move away from doing just pure entertainment to socially relevant? Because, ma'am, I got bored. Okay. I got bored of it. Yes, but I still do sometimes a house full, because then I get bored of that. So I have to come back. Okay. So and God has been kind that I got this whole thing that I can make my own films. I can make Mission Mangal. I can make. I mean, कितने लोगों ने मुझे कहा, अक्षय साइंस के ऊपर फिल्म बना रहा है तू, रॉकेट पे. अच्छा तू बता, तेरे ड्राइवर को ऑर्बिट के बारे में पता है? तू उससे पूछ ले. एंड ही वाज आस्क्ड ऑर्बिट, ही सेड नहीं. मैं बोला अगर उसको नहीं पता है तो मैं ऐसी फिल्म बनाना चाहूंगा कि वो जब देखेगा उसको समझ में आएगा, अच्छा ऑर्बिट मतलब ये. फायदा क्या होता है फिल्म बनाने का कि एक आम इंसान जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर आप उसको समझा गए ना तो आपकी फिल्म सही है. शौचालय पे भी मैंने जब फिल्म बनाई थी तो मैं चाहता था कि हर एक इंसान समझ सके कि औरत के लिए शौचालय कितना जरूरी है. तो इसमें how much is your own awakening in this, and how much is it also your wife, because she writes so much about socially relevant issues. Does she discuss this with you and say कि आप क्यों नहीं ऐसे बने? like a pad man. When she told me about, देखिए मेरी नॉलेज, मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ उतना ही हूँ, लेकिन मेरी नॉलेज बढ़ती जा रही है ऐसे लोगों से मिलके. मेरी वाइफ ने मुझे सैनिटरी पैड के बारे में बताया, उसके वो इंसान के बारे में बताया, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इन्होंने बताया. तो ऐसे क्या होता है ज़िंदगी में. फिर जो मिशन मंगल है, जो उसका डायरेक्टर है, उसकी जो सिस्टर है, शी इज़ अ साइंटिस्ट, उसने मुझे मिशन मंगल के बारे में बताया. फिर मुझे कोई इंसान मिले जिन्होंने बताया एयरलिफ्ट के बारे में, जिन्होंने बताया कि 1,70,000 लोग फंसे थे. तो ऐसा होता है कि मैं अपना माइंड क्लीन लेके चला हूँ, एक साफ पेपर. लोग मिल जाते हैं, ये भरते हैं, टक 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 टक, फिर रजिस्टर होना शुरू होता है. आज अगर मुझे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूछोगे तो मुझे बहुत पता है, लेकिन इनकी वजह से. और यही नॉलेज मैं एक फिल्म के दौरान लोगों को देना चाहता हूं, जो उनको पता चलेगा इसके बारे में. See, the thing is that even Karan Johar said you're like a one-man industry. Why? Because you came from outside with no backing at all, and the fact that you can make movies that you want to make, that's something that is quite phenomenal, isn't it? Don't you think that? Yeah, because मेरे पास अब पैसे हैं, मैं बना सकता हूँ, वरना नहीं बना सकता. वरना अगर मैं किसी को कहूँ कि टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाएगा, आपको पता है वो फिल्म जो है, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, वो 5 साल से घूम रहा था इंडस्ट्री के अंदर,
और बड़े बड़े हीरो को उसने बताई है फिल्म, लेकिन वो लोग क्या टॉयलेट एक प्रेम का था. Are you mad? Who wants to make a movie on टॉयलेट एक प्रेम का था? And actually they were thinking, हमें से, who wants to talk about sanitary pads? Why would you make a film on that? Who wants to do a film on science? Who cares? So that you don't get scared that in this the film could flop, it could be a failure, and you could have made a mistake in picking up these themes. Yeah, the scare is that, see, I कि can, Friday to Friday होता है ना success. ma'am, I can easily make a Rowdy Rathod 2 or a Sing is King 2 and earn about 4 times more than what I earn in these films. But the plan is not about earning. The plan is about doing something where the society can understand about our field, our people. These are our great heroes. The sanitary pad guy, he is a great hero. Mrs. Samrat Prithviraj is a great hero. I am getting an opportunity in one lifetime to play some different kind of roles, and I can achieve so much. I am I can consider myself one of the most luckiest person that इतने सारे किरदार मिलते हैं मुझे खेलने के लिए. अभी तो इन्होंने साहब ने मेरे साथ राम सेतु भी लिखी है. He is my creative director, my creative producer in it. You have to see that film. I didn't even know about Ram Setu, क्या मतलब about the bridge. And Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. Do you have a single line? आपने भी नहीं पढ़ी उसका नहीं मतलब? पढ़ी है. अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है. I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about महाराणा प्रताप. आप राणा प्रताप you want to play next? वो मुझे नहीं पता. मुझे नहीं पता कोई If somebody comes up with a, somebody comes, God knows. आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल कुछ पता you नहीं believe क्या a है. lot in fate, right? Obviously. You do. I do. Absolutely. I believe in it because it's आप चलते चलते आपकी मुलाकात कुछ लोगों से हो जाती है. And ये तो एक मुलाकात थी. हाँ. ना इन्होंने कभी मुझे बुलाया, ना मैंने इन्हों को. ये मुलाकात थी. इन्होंने आदि चोपड़ा जी से बात की और आदि चोपड़ा ने पूछा कौन, तो इन्होंने कहा ये, और फिर मुझे बुलाया गया और फिर मिला गया. आप भी life has taken you know into many spheres. आप दिल्ली के हैं, आप बम्बई चले गए, and you keep coming back to Delhi. What is it about coming to Delhi? What is it one thing about Delhi that you'll never you'll never forget and you miss it a lot when you're not here? मेरा घर है यहाँ. आई एम अ डेलीआइट. मेरी पैदाइश यहाँ की है. सब जानते हैं सिवाय गूगल के. गूगल अभी भी लिखता है अमृतसर में पैदा हुआ हूँ. कैन यू बिलीव? हाँ, गूगल में अभी भी लिखा हुआ है. अरे मैं 10 बार बोल चुका हूँ मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, वो फिर भी लिखते हैं. नहीं, पर अगर मैं आंखें बंद कर लूँ, मुझे ना पता हो कि अक्षय कुमार सामने बैठे हैं, एंड सिर्फ मैं सुनूं वो क्या कह रहे हैं, ही लुक्स लाइक पिंड दा मुंडा. You are so Punjabi, so that's why. क्या करूँ? अभी भी मैं कभी बराबर घंटी नहीं बोल सकता हूँ, कैंटी बोलता हूँ. तो फिर किसकी गलती है कि अगर गूगल की गलती तो नहीं है ना फिर? हाँ? गूगल की गलती क्यों? तो, पंजाबी यहाँ नहीं बसते? हाँ, okay. So Delhi is पंजाबी Punjab. से पंजाब में ही बसते हैं. Yeah, okay. So I want to, just before we end, I want to come back to the thing about mental health, and you have kept yourself physically very active, and you keep speaking about how everybody should be should involve, keep that balance between family life and work life. Can you speak to the youth and tell us why it is important to keep that balance in today's day and age? I'm speaking more because, after COVID, the stress, economic stress is so much on families and on youngsters. So could you tell us how
it's so imperative to keep that going in life? It is very important that you keep a balance of your life. And अभी मैं थोड़े दिन पहले एक गांव में शूटिंग कर रहा था, एंड मैं जाके मुझे आदत है कि मैं उनके साथ बैठ के एक गांव में किसी के घर चला गया, एक फार्मर था, उनके घर में चला गया और जाके उसके साथ बैठ के मैं चाय पी रहा था और मैं देख रहा था, उसका घर देख रहा था, बहुत ऐसी छोटी सी झोपड़ी थी उनका, लेकिन इतनी खुशी थी उनके घर में, इतनी खुशी थी, मैं आपको सच बताता हूँ, इतनी खुशी तो मेरे घर पे भी नहीं होती, जबकि मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर में खुशी है, लेकिन उनके घर में ज़्यादा खुशी थी। वो पता नहीं कहाँ से लाए वो लोग। दे वर वेरी हैप्पी एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं आके उनके वहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ। मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था, उनके साथ बैठ के आराम से बातें कर रहा था, क्योंकि कोई इस बात का स्ट्रेस नहीं है। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, बच्चे बाजू में ही पाठशाला है वहाँ चले जाते हैं, और एक बैलेंस रखा हुआ है। पिताजी घर पे आ जाते हैं शाम को काम करने के बाद, एंड उसके बाद अपने घर पे भी बच्चों के साथ, और फिर रात को एक पिताजी वो बता रहे थे कि मैं फिर सोने के लिए मराठी में बता रहे थे, मम्मी रामायण सांगतो, मुझे रामायण की कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, और उन लोग सो जाते हैं। और कई बार तो मैं इतना थका होता हूँ, मैं रामायण कहानी सुनाते सुनाते मैं सो जाता हूँ, वो लोग फिर भी जागे रहते। तो मैं देख रहा था कि एक लाइफ का बैलेंस उन्होंने काम, एजुकेशन, खाना पीना, ये सब कुछ बना के रखा हुआ है। एंड दिस इज अ थिंग टू लर्न फ्रॉम देम, To go back why to the why roots. to go to back to your basics. We are not in our basics. A journalist, lot of journalists ask me, why do you sleep early? Why shouldn't I sleep early? I should sleep early because when I was a child, my mom and dad used to tell me, बेटा 9:30 बज गए बेटा, सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ. We changed it. We have been dirty. That we have started sleeping at 12:30 and thinking 1 o'clock that it is so cool. We made stress to our body. Oh, you get up at 4 o'clock. What is wrong with you? Somebody says. Why not shouldn't I get up at 4 o'clock? Which Bombay actor gets up at 4 o'clock? I don't want to talk about who gets up or who doesn't. Okay. But why shouldn't I get up at 4:30? Yeah. Isn't that supposed to be Good. Because you don't, one thing about you, you don't do what everybody does, huh? So I want to ask you, what is your identity? आप दिल्ली वाले हैं, बॉम्बे वाले हैं, कनाडा वाले हैं, कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली वाला हूँ. दिल्ली वाले. Yeah, I'm a Delhiite. Okay. Because there's always this thing कि कहाँ के हैं ये? नहीं, मैं दिल्ली का हूँ और प्योर हिंदुस्तानी हूँ. And I live my life the exact way what I was in my childhood. And I have to ask you another question, because your wife writes a column every week and she's so popular with her column. You are this really Prinda Munda, and she is ultra sophisticated, born into two very famous people. How does the connect work? How does that marriage work? It works very weirdly. It works very weirdly. I have no idea. But she thinks there, I think there. But you input into each other's creativity. If asked. Okay. Not, why did you do it? No. Huh. If asked, then she will give me a suggestion. If asked, she says, read my column, I would read it. What do you think? I would say, this is not a good thing. If not asked, keep myself aside. So you are these two entities who have kept your personalities the way you were. Yeah, I don't interfere with her life, she doesn't interfere with mine. Right. You faced a number of challenges when you came into the industry. She probably didn't, but she said goodbye at one point of time कि मैंने नहीं करना ये. Because she knew that she's not good. How many actors and actresses who are dine-ass accept that they are not good? They don't. They don't need.
she left because she just decided मैंने नहीं करना. Yeah, because she said my mold was not made for it. Just because my mom and dad are from the industry doesn't mean that I should also be in the industry and score here. Akshay ji, your children will not have to face the same problems which you probably did if they were to enter the industry. They don't have to change their names, for example. You did. Change my name. I changed my name Akshay. From Rajiv to Akshay. Yeah. I changed it ऐसे ही. अच्छा. ना किसी पंडित ने नहीं बोला. हाँ. मैंने एक्चुअली, चले मैं आपको बताता हूँ मैंने अपना नाम क्यों बदला. मैंने एक फिल्म में ना एक छोटा सा रोल किया था, एग्जैक्टली 8 सेकंड का, जिसमें मैं हीरोइन को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ. एज ए टीचर आया था, ये थोड़ा बहुत गिरा. 8 सेकंड. महेश भट्ट ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी. उस फिल्म का नाम था आज. उसमें हीरो जो थे उनका नाम था कुमार गौरव और फिल्म में उनका नाम था अक्षय. अच्छा. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये मेरी पहली फिल्म है, मुझे फिल्मों में आना है. तो मुझे पता चला कि यार कुमार गौरव का नाम अक्षय है, तो यार मैं अपना नाम बदल लेता हूँ. And now are you going to take the name Samrat? नहीं, I don't want anything like that. No. Okay.